Hello everyone. So in the last lecture we have discussed types of unit cell. Now we are with the number of atoms present in the unit cell. As we know, we are having two types of unit cell. One is simple unit cell. Second one is centered unit cell. And we know centered unit cell are of three types: ECC, FCC, and BCC. Earlier in the previous class we have discussed it. BCC, body centered, face centered, and centered. So, but today we want to know how many atoms are present. Means if these unit cells are here, so in each unit cell how many number of atoms are present? That's a very important question here. So how we will find out how many atoms are present in them? So let's start with a simple one. As we know, it's a simple crystal lattice, but it will complete when we put atoms on the corner. It is our simple unit cell. BCC, it will complete when we put atoms on the corner and one atom inside the whole body. It is our BCC. Second one, FCC, it will complete when we put atoms on the corner and in the face of in the center of each face. So it is our FCC. ECC, firstly atoms on the corner and one in the center of one face and in front of it, means in the opposite direction another face center. So it is our ECC. Okay. So now we are having these three. So we have to find out the atoms present in them. So firstly start with the simple one. In the simple, firstly we must know how many corners are here. Total number of corners are 8 in a unit cell, but on each corner we are having atoms. But can you say that each atom is of one corner only? Means क्या एक कॉर्नर पे जो एटम है क्या वो इसी का है? इसी का नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर जो है बाकी और दूसरे जो साइड में यूनिट सेल्स हैं उनके साथ भी अटैच होता है. ये कहूं कि एक कॉर्नर जो होता है वो 8 यूनिट सेल से घिरा होता है, इसीलिए एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/8. इफ वन कॉर्नर इज कंट्रीब्यूटिंग 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8. सो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 corners are 8 into 1/8. That will be equal to 1. It means in a simple unit cell, how many number of atoms are present? Total number of atoms present are 1. It is clear. Now come to the second one, that is BCC. As we know, the same corner which are there in the simple one, the same atoms are present in the case of BCC also, means on every corner we are having the same number of atoms as they were in the simple one. So 8 corners into one corner contribution 1/8. So total contribution of corner 1. But as we know, one atom is also present in the center of the body. Remember, it is surrounded by the all 8 corners, so it means this atom is present inside the whole body. It means it is of only one unit cell. तो पूरी बॉडी इसी की है, इसी के अंदर है, तो इसी के अंदर अगर पूरी बॉडी है तो ये पूरा का पूरा एटम किसका है? इसी यूनिट सेल का है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन मींस बॉडी सेंटर्ड एटम कितने हैं? 1. सो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन CC मैं लिख रहा हूं यहां, CC का मतलब कॉर्नर कंट्रीब्यूशन. सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 into 1/8 is equal to 1. वन एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1. तो टोटल कितना हो गया?
1 कॉर्नर का और 1 बॉडी का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2। तो इट मींस बॉडी क्यूबिक सेंटर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हो गए 2। ठीक है, नेक्स्ट एफसीसी टोटल कॉर्नर्स 8, 1 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इट मींस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। इट मींस कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एफसीसी दैट इज इक्वल टू 1, बट एज वी नो 6 faces are there, and in the center of each face what we are having atom, and each face is surrounded by, it is covered by, it is shared its atom with the 2 unit cells. How it is sharing the 2 atoms you will see in the figure, स्क्रीन पे आपका फिगर आ रहा होगा। इस फिगर की हेल्प से आप देखेंगे कि एक एटम दो फेस के साथ अटैच है, तो उसी लिए एक जो फेस होगा वो फेस अगर 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। मतलब फेस कंट्रीब्यूशन अगर मैं लिखूं FC फेस कंट्रीब्यूशन, या F कौन मैं कर देता हूं रन रखने के लिए, F कौन मीन्स फेस कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/2, बट टोटल फेसेस कितने हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 2 into 3 दैट इज 6, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। अब 1 कंट्रीब्यूशन कॉर्नर, 3 कंट्रीब्यूशन फेस, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो इट मींस इन द केस ऑफ फेस क्यूबिक सेंटर 1 atom present on the corner and 6 faces are there, so faces का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 और टोटल फेसेस कितने हैं 6, सो 1/2 into 6, सो टोटल फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3, 1 कॉर्नर 3 फेसेस, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ईसीसी, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं बता दूं, कॉर्नर कितने 8, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। अगर 8 into 1/8 यहां पे है तो सिंपल सी बात है आपके पास कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, बट एज वी नोट अपोजिट फेसिस में भी एक है और वो कहां है फेस के सेंटर में। हमें पता है फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है 2, अगर फेस का कंट्रीब्यूशन 2 है और कितने फेस में एटम प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 कॉर्नर का और 2 अपोजिट फेसिस का, तो टोटल कितना हो गया 2। तो ईसीसी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2। एक बार दोबारा देखें, सिंपल के अंदर टोटल कॉर्नर 8, एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, सो 8 into 1/8 टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल इज 1। इन द केस ऑफ बीसीसी 8 corners are there, corner contribution 1/8, so 8 into 1/8 is equal to 1, तो corner contribution कितना आ गया 1, but 1 atom is present inside the body, मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई एटम प्रेजेंट है तो केवल मेरा है, वो किसी और का नहीं है, सो वो पूरा का पूरा किसका है मेरा है। तो ये एक कॉर्नर का है और एक बॉडी के अंदर का है, तो ये कितने एटम हो गए टोटल 2। फेस क्यूबिक सेंटर 8 corners are there, corner contribution same 1/8 into 8 is equal to 1, but how many faces are there 6 faces are there, तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, क्योंकि जो एक फेस है वो एक फेस जो एक एटम है वो 2 फेसिस से घिरा हुआ है, तो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में कितना होगा हाफ, दैट इज 1/2। अगर मैं आपको सिंपली यहां ड्रॉ करके बताऊं तो अगर मेरे पास कोई फेस यहां पे है या कोई एटम इस फेस के सेंटर में है और साइड में इसके एक और यूनिट सेल बना हुआ है, तो जो ये एटम है ये इस वाले यूनिट सेल का भी है और ये एटम इस वाले यूनिट सेल का भी है, मतलब ये आधा एटम इसका काउंट होगा और आधा एटम इसका काउंट होगा। तो इसीलिए 1/2 इसका 1/2 इसका, बट मैं यहाँ केवल एक लेके चल रहा हूं तो इस साइड कुछ नहीं है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 एक फेस का, टोटल फेसेस कितने हैं 6, सो 1/2 into 6 is equal to 3, and 3 and 1 टोटल कितने हो गए 4। नाउ इन द केस ऑफ ईसीसी कॉर्नर पे 1, क्योंकि 8 into 1/8
और फेसिस कितने फेसिस में एटम है? 2 फेसिस में, 1 और 2, तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, बट टोटल फेसिस कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 2. सो दैट इज अबाउट द टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. Now our next topic is close packed structure. So close packing, a very important topic of this chapter. So close packed structure is of 3 types, but basically in our syllabus 2 types are written there. 2 types are there, means 2 types are in our syllabus. But I will tell you 3: 1D, 2D and 3D. 1D means 1 dimension, 2D means 2 dimension, 3D means 3 dimension. Their subparts are also there. So right now I will discuss just 1D and 2D, because 3D is having a sub branching there, so I will discuss in detail later, but just here I will tell you how many types are there. So what is 1D, what is 2D and what is 3D? Let's discuss. D means dimension. As we know, one dimension means only one direction is there. With the help of diagram we can easily understand it. Here how many dimensions are there? Only one dimension. But in the case of 2D is subdivided in 2 parts, means 2 तरह की डायमेंशन इसके अंदर हो सकती हैं. वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मैं यहां लिखूंगा ए टाइप. यहां पे क्या हो सकता है? ए बी टाइप. सो दीज 2 आर देयर, बट क्या होती हैं ये मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ. तो इसको एक और नाम दिया गया है और एक इसको और नाम दिया गया है. ए टाइप को एक नाम दिया गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इसको नाम दिया गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपको इस टाइप से पता लग जाएंगी. ठीक है, उसके लिए ए टाइप होता क्या है उसको समझेंगे. दोनों को फिगर की हेल्प से बताऊंगा. ए टाइप के लिए ए मान के चलिए एक अरेंजमेंट है एटम्स का एक लाइन में. सपोज ये मेरी ए लेयर है, दूसरी ये एक लेयर आ गई, दूसरी लेयर भी क्या है? ए का मतलब वो भी बिल्कुल सेम ही होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो जस्ट इसके नीचे आ जाएगी. ये दूसरा ए आ गया. नेक्स्ट क्या है? थर्ड ए. इसके नीचे जस्ट एक और लेयर आ जाएगी. ये क्या हो गया आपका? थर्ड ए हो गया. ये आ गया. नेक्स्ट क्या है? फोर्थ. यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 3 या 4 ही ए लेके चले, आप कितने भी ले सकते हैं. बस मैं जस्ट एग्जांपल की हेल्प से ए टाइप बता रहा हूं. ठीक है, तो एक और ए ले लिया मैंने यहाँ. 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं हरे में सी लेके चला हूं. तो ये मेरे पास ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया. तो ये मेरा कौन सा टाइप हो गया? ए टाइप. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक ए है, एक बी है, एक ए है और एक बी है. मतलब सबसे पहले ए टाइप. ये मेरे पास क्या आ गया? ए टाइप. बी टाइप का मतलब क्या है? वो ए जैसा नहीं है. उसके लिए क्या करना है कि जो बी लेयर है वो 2 एटम के जस्ट यहां नीचे एक एटम आपको ड्रॉ करना है. ये चीज बड़े ध्यान से आपको नोट करनी है. ये आ गया. तो ये मेरी कौन सी लेयर है? ये मेरी ए लेयर है. ये मेरी कौन सी लेयर है? ये मेरी बी लेयर है. ठीक है, अब फिर से क्या आना है? एक ए आ गया, एक बी आ गया, थर्ड क्या आना है? ए का मतलब जो जस्ट ए के नीचे यहां बनानी है. ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? ए लेयर. अब नेक्स्ट क्या है? फिर बी लेयर, जो बी के जस्ट नीचे आएगी. जब ये तरह का अरेंजमेंट होता है तो ए बी, तो कौन सा टाइप हो गया? ए बी टाइप. अब यहां ए बी टाइप मैंने बता दिया, ए टाइप मैंने बता दिया. तो फिर ये नाम जो इनको दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं? जो ये नाम दिए गए हैं, इनको समझने के लिए आपको क्या समझना है? एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. ये आपको समझना है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सिंपली याद रखें, नंबर ऑफ पड़ोसी कितने हैं.
नंबर ऑफ पड़ोसी का मतलब मेरा घर यहाँ है तो मेरे घर के दाएं, मेरे घर के बाएं, मेरे घर के बैक में, मेरे घर के फ्रंट में कितनी वॉल्स, कितनी मेरे घर की जो दीवार है वो उनसे अटैच है, वो एक्चुअल में क्या है, मेरे नंबर ऑफ पड़ोसी। नंबर ऑफ पड़ोसी है तो उन्हीं को क्या बोल दिया गया, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो कितना है वो यहाँ ध्यान रखना है। मैं जस्ट एक कोई भी एटम आप यहाँ काउंट करके चले, जैसे मान के चलिए मैं इस एटम को यहाँ काउंट कर रहा हूं, ये मेरे पास ये एटम मैंने ले लिया। यहां पर भी आप किसी को भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मान के चलो मैंने इसको ले लिया यहां पे, ठीक है। अब जो ये मैंने लिया, मान के चलो कि ये मेरा घर है। अगर ये मेरा घर है तो मेरे घर की जो दीवारें हैं वो कितने एटम से या कितने पड़ोसियों से अटैच है, चेक करें। क्या ये मेरे घर की दीवार क्या इससे अटैच है, बिल्कुल है। क्या इससे अटैच है, नहीं है। ये इससे अटैच है, क्या इससे मेरे घर की दीवार अटैच है, बिल्कुल है। क्या इससे मेरे घर की दीवार अटैच है, नहीं है। क्या इससे मेरे घर की दीवार अटैच है, बिल्कुल है। क्या इससे मेरे घर की दीवार अटैच है, नहीं है। क्या इससे अटैच है, बिल्कुल है। अब चेक करें मेरे घर से कितनी दीवारें अटैच है, आपको मिलेगा 1 2 3 4। इनको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, आप चेक करें मेरे घर से 4 पड़ोसी अटैच हैं, मेरे घर की दीवार 4 पड़ोसी अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप चेक करें क्या ये एक स्क्वायर नहीं बन गया। जो ये मैंने बाउंड्री अटैच की है, जो मैंने बाउंड्री ड्रॉ की है, क्या ये एक स्क्वायर बन गया है, हाँ ये एक स्क्वायर है। और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैंने जो सर्कल किया है आप उसको चेक करें कि उसके नंबर ऑफ पड़ोसी कितने हैं। नंबर ऑफ पड़ोसी, सबसे पहले मैंने इसको देखा कि इसकी बाउंड्री किस किस से मिलती है। इसकी बाउंड्री सबसे पहले इससे मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये बनाने में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, आप अपने नोटबुक में थोड़ा ध्यान से बनाना। ये इससे भी अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, ये इससे भी अटैच है, और ये इससे भी अटैच है। तो चेक करें मेरे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या इससे 6 एटम्स अटैच हैं, जिनको मैं लाइन की हेल्प से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। जो कि किसकी तरह नजर आ रहा है, क्या ये एक हेक्सागन है, बिल्कुल है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान दें दोबारा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि हाँ यहां मैंने लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, कितने पड़ोसी हैं, तो यहाँ पड़ोसी कितने हैं, 4 हैं। इसीलिए नाम क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां चेक करें, यहाँ नंबर ऑफ पड़ोसी कितने हो गए, 6 मींस नंबर ऑफ नेबरिंग एटम कितने हो गए, 6। तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब बात डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 3D क्रिस्टल 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। सो इन 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर दे विल बी, यू कैन से 2D विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द 3D स्ट्रक्चर्स। कैसे, 2 टाइप मैंने यहां लिखे हैं, तो वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। इसका फर्स्ट टाइप जो है वो किससे बना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना है। इसलिए मैं इसको लिखूंगा 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड ऑफ 2D। मतलब जो 2D का स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, इससे हम क्या बनाएंगे, 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। इन द सिमिलर वे या इन द सेम वे जो सेकंड यहां बनेगा वो किससे बनेगा, हेक्सागन से। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 3D फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज
पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ 2D, यहां भी आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ 2D, मतलब 2D के स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से क्या बनाएंगे 3D। यहां भी 2D के हेक्सागन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से क्या बनाएंगे 3D। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये आगे फर्दर क्लासिफाई होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।